morning students, myself Sanjay Kumar Gupta, maths and science teacher in St. Michael's Academy, Bettiah. Students, this is my fourth video in science for class 7, chapter 5, transfer of heat. In this video, we will read about radiation, even about conduction and convection. I talked to you in last videos. So what is radiation? Radiation means the mode of transfer of heat from a hot body to a cold body directly without any contact or any medium. यानी यह एक ऐसा साधन है जिसमें किसी उष्मा के स्रोत की जो गर्मी होती है वह बिना किसी माध्यम के दूसरे चीजों तक या दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। नाउ द रेडिएशन डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। फर्स्ट, द नेचर ऑफ द मटेरियल, सेकंड, द डिस्टेंस from the source of heat, and third, color of object. Students, you have seen at your home a heater which is burning in winter season. What happens in that case? You can see that a heater has a radiator. I suppose that this is a radiator which is joint with it, and here the coil is attached. When the heater start burning, now the heat just reaches at the radiator, and this radiator again reflect or radiate its heat to the room. Okay, now due to the radiation the room becomes hot after some time. You have often feel the hotness of fire. What happens? Do you keep your hands in the fire? No. When you keep your hand just above the source of heat, you feel hotness. यानी अब उस स्रोत से और आपके हाथों के बीच क्या काम कर रहा है जो उस उष्मा को आप तक पहुंचा रहा है? Now obviously here is a layer of air. यानी यहाँ हवाओं की परतें हैं जो उस सोर्स से और आप तक इन चीजों को पहुंचाने का काम कर रही है। सपोज नाउ देयर इज सन एंड इट्स एमिट्स इट लाइट विच comes to the first layer of earth. You know that we are just surrounded by the air which just make a thick layer around us. तो इस तरह से क्या होता है कि जब ये सूर्य की किरणें पहले परत पर गिरती है तो यह उसको गर्म करती है। अगेन आफ्टर गेटिंग हीट द लेयर रेडिएट्स इट्स हीट and just imply this heat to make hot of the second layer. अब यह दूसरे लेयर को गर्म करने में अपना एनर्जी लगाता है. Again after heating it radiates heat and then reaches to the third layer of the earth. अब यह तीसरे लेयर को गर्म करेगा and one time comes when we all feel hot. और इस तरह से
आप देख सकते हो कि इस सूर्य से और इस परत के बीच कितना डिफरेंस है, बट ड्यू टू रेडिएशन वी गेट द एनर्जी ऑफ द सन इन द फॉर्म ऑफ heat as well as light. So students, it's time to read books and get more knowledge. The sun is the ultimate source of energy for our planet. It simply means that energy travels to our planet directly from the sun in the form of heat and लाइट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सूर्य ऊर्जा का असीम स्रोत है और हमारी जो पृथ्वी है वह उस स्रोत के प्रकाश और गर्मी दोनों को आसानी से प्राप्त करती है और यह चीज सीधे हमें सूर्य से अपने ग्रह पर प्राप्त हो जाता है। It is also very known that there is no direct contact between the sun and the earth, and there is a lot of space between the two, which does not contain even air. Then how does the heat from the sun reach us on the earth when the possibilities of transfer of heat through both conduction and convection are ruled out? Students, ये सूर्य का जो प्रकाश है, क्या वह कंडक्शन के द्वारा, क्या वह कन्वेक्शन के द्वारा हमारे तक पहुंचता है? नहीं, यह प्रक्रिया रेडिएशन के द्वारा संभव हो पाती है। जैसा कि इस बुक में बताया गया है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सूर्य और हमारे पृथ्वी के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं होता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी और आकाश के बीच एक बड़ा स्पेस खाली होता है जिसमें हवाएं भी नहीं होती। कुछ ऐसे भी प्लेस होते हैं जहाँ हवाओं का अभाव होता है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि यह प्रक्रिया रेडिएशन होती है जो सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचाने का काम करता है। हीट फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स रीचेज अस बाय अ मोड नोन एज रेडिएशन। द रेडिएशन कैरिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन नीड्स नो मीडियम टू ट्रेवल, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम आल्सो। सुदूर सोर्स से जब ऊष्मा हमारे तक जिस माध्यम से पहुंचती है उसको हम रेडिएशन या विकिरण के नाम से जानते हैं, और यह रेडिएशन जब हीट एनर्जी को कैरी करेगा, हीट एनर्जी को फैलाता है, तो हम उस स्थिति में इसको ऊष्मीय विकिरण या ऊष्मा विकिरण या थर्मल रेडिएशन के नाम से जानते हैं। थर्मल रेडिएशन नीड्स नो मीडियम टू ट्रेवल, क्योंकि इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है और यह निर्वात यानी वैसे जगह जहां हवा नहीं हो वहां भी गुजर सकती है। एनी हॉट ऑब्जेक्ट वेदर अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस गिव्स आउट थर्मल radiation. This is why the presence of hot object in the surrounding can be felt even when there is no direct contact with it. चूंकि यह उसमें विकिरण बिना किसी माध्यम के चारों तरफ बिखरती है और इसलिए हम इसके डायरेक्ट संपर्क में हों या न हों, अगर हमारे आसपास यह विकिरण मौजूद होता है तो हम उसका अनुभव कर सकते हैं। When thermal radiation falls on objects, the objects absorb it and become hotter. But the amount of heat absorbed by different objects is different. The amount of heat absorbed by an object depends upon the nature of the material
in which metals and water absorb more heat than non-metal. स्टूडेंट्स, मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया कि जो थर्मल रेडिएशन होता है, जब यह किसी वस्तु पर गिरता है तो वह वस्तु क्या करती है, उस ऊर्जा को अवशोषित करती है, कुछ ऊर्जा वह छोड़ देती है। और इस तरह से यह निर्भर करता है कि कोई वस्तु कितनी अधिक ऊर्जा यानी उष्मा की मात्रा को अवशोषित करती है। यह 3 बातों पर निर्भर करेगा। पहला, उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है। सेकेंड, सोर्स ऑफ हीट से वस्तु की दूरी कितनी है। और तीसरा, उस वस्तु का रंग कैसा है। सो फर्स्ट, एज द नेचर ऑफ द मटेरियल, एज मेटल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब मोर हीट देन नॉन मेटल, क्योंकि अधातुओं की अपेक्षा धातुएं और पानी अधिक से अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा किताब, कॉपी, दूसरे कागज के बने वस्तुएं, लकड़ी, अगर हम इनको धूप में डाल देते हैं और वहीं पर लोहे से बने सामान को धूप में डालते हैं तो कौन ज्यादा गर्म होगा, लोहे का सामान, क्योंकि यह हीट को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब कर लेता है। और सेकेंड है कि उस वस्तु से उस उष्मा के स्रोत का दूरी कितना है। जब हम किसी सोर्स के नज़दीक जो कि हीट को पैदा कर रहा है, अगर हम उसके जितना अधिक नज़दीक रहेंगे उतनी अधिक गर्मी मिलेगी, और हम जितना ही दूर उससे जाएंगे उतनी ही गर्मी कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ उसका रेडिएशन का दायरा भी घट जाता है। एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट also affects the absorption of thermal radiation। क्योंकि उसमें विकिरण में रंगों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब जाड़े के दिन होते हैं तब कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, गहरे रंग के कपड़ों पर पहनना पसंद करते हैं, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब मोर एंड मोर हीट एज वेल एज दे रेडिएट हीट ऑल्सो। ये अधिक ऊर्जा को शोषित तक करते ही हैं, साथ में ये ऊर्जा को विकृत भी कर देते हैं। सो डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर एज वेल एज गिव आउट मोर थर्मल रेडिएशन। लाइट कलर्स एब्जॉर्ब लेस एंड गिव आउट लेस थर्मल रेडिएशन। तो आपने देखा कि जो गहरे रंग के चीजें होती हैं वो अधिक से अधिक उष्मा को अवशोषित भी करती हैं और विकृत भी करती हैं, जबकि हल्की रंग की वस्तुएं जो होती हैं वह कम से कम ऊर्जा को अवशोषित करने के साथ साथ कम से कम विकृत भी करती हैं। और यही कारण है कि जब गर्मी के दिन आते हैं तो हम हल्के रंग के कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। Thus black color absorbs maximum and give out maximum thermal radiation. The white and silver colors absorb minimum and give out minimum thermal radiation. So good absorbers are good radiators and poor absorbers are poor radiators also. इसलिए जो वस्तुएं जितने अधिक ऊर्जा को अवशोषित करेंगी उतनी ही अधिक विकृत भी करेंगी, और जितनी कम ऊर्जा को अवशोषित करेंगे उतनी ही कम ऊर्जा को विकृत भी करेंगी। नाउ चॉइस ऑफ कलर्स इन आवर लाइफ। कलर्स plays a very important role in our life, since the amount of heat absorbed or radiated our depends upon the color of the object. The choice of colors of clothing, umbrella, walls of the buildings, cooking utensils, etc. should be made intelligently. Some intelligent applications that are generally used are: we wear light colored cloth in summers because minimum heat is absorbed by them from the sun, and dark colored cloths are preferred in winters because they absorb maximum heat from the surrounding during the day time. Students,
रंगों का बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि मैंने पहले ही आपको समझाया कि कलर जो होते हैं वो जैसे गाढ़े रंग के कलर अधिक से अधिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और जल्दी विकृत भी करते हैं, और इसलिए हम गर्मी के दिनों में हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि जाड़े के दिनों में गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं ताकि वह अधिक से अधिक उष्मा को अवशोषित कर सके। The bottom of cooking utensils is painted black while the sides are kept sparkling bright. This is done so as to absorb the maximum heat through the bottom and radiate minimum from the sides. Students, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि हमारे घरों में जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके पेंदे गहरे रंगों के बनाए जाते हैं, जबकि उसके साइड्स कैसे होते हैं, वो हल्के रंगों के, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट बट रेडिएट मिनिमम हीट। क्योंकि गहरे रंग के पेंदे होने से वो अधिक से अधिक ताप को अवशोषित करते तो हैं, लेकिन यह कम से कम ताप को अपने से विकृत करते हैं और हमारा खाना उसमें जल्दी पक जाता है। So pipes of solar heaters and containers of solar cookers are painted black from outside so that maximum radiation from the sun could be absorbed. इसी तरह से जो सोलर हीटर्स के पाइप होते हैं या सोलर कुकर के जो कंटेनर्स के पाइप होते हैं वह काले रंगों से रंगे जाते हैं ताकि अधिक से अधिक सूर्य के रेडिएशन को वह प्राप्त कर सके और वह अच्छी तरह से कार्य को करा सके। द रेडिएटर्स ऑफ कार्स एंड एयर कंडीशनर्स आर पेंटेड ब्लैक टू रेडिएट अवे द हीट। The three modes of transfer of heat can be explained from the following situation, as there is a activity as let us consider a football coach having 50 footballs to be distributed to his 50 trainees. There are three different ways by which this task can be accomplished. The coach arranges the players in a number of rows and stands in front of the first row with the balls. He hands over one ball at the time to the first trainee in the first row. The ball keeps on passing from the first to the next and then to next until it reaches the last trainee. The process goes on until each trainee receives a ball. स्टूडेंट, इस तरह के एग्जाम्पल मैंने कन्वेंशन में भी आपको बताए थे कि कैसे अगर 10 बच्चे लाइन में खड़े हों और एक व्यक्ति जो उन्हें टॉफी बांटना चाहता है तो वह पहले बच्चे को टॉफी देता है और वह दूसरे बच्चे को टॉफी देने के लिए क्या करता है कि पहला बच्चा वह खुद अंत में चला जाता है और फिर दूसरा बच्चा उसके प्लेस पर चला आता है। लेकिन यहाँ हम कंडक्शन को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसा कि इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक कोच अगर ट्रेनीज को फुटबॉल देना चाहता है तो वो क्या करेगा कि उन ट्रेनीज को लाइन में खड़ा करा देगा और फिर वह पहले ट्रेनीज को अपना फुटबॉल दे देगा, वह ट्रेनिंग फिर उस फुटबॉल को दूसरे ट्रेनी को देगा, दूसरा ट्रेनी तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, और इस तरह से वह फुटबॉल अंत तक पहुंच जाएगा। नाउ दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन में आपको क्या दिखाया गया था कि किसी वस्तु के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह आपस में सटे होते हैं और जब हीट पहले मॉलिक्यूल को जाता है तो वह गर्म होकर कंपन करता है और कंपित होकर फिर अपने ऊष्मा को दूसरे को ट्रांसफर कर देता है और फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह से पूरी वस्तु गर्म हो जाती है। नाउ द कोच स्टैंड एट अ पार्टिकुलर प्लेस in the playground with all the balls and arrange the players in a single line. He asks each player to come to him and take the ball. Soon he will be able to distribute the ball to each trainee. चूंकि ऐसी स्थिति में क्या होगा
कि वही बात जो टॉफी वाली है कि वह फर्स्ट ट्रेनी को अपना बॉल थमाएगा और फिर वहां से वह फर्स्ट ट्रेनी उसको लेकर लास्ट में चला जाएगा, फिर दूसरा वाला पहले वाले स्थान पर आएगा, फिर वह भी लास्ट में जाएगा और इस तरह से हर ट्रेनी को फुटबॉल मिलेगा। जबकि इन थर्ड कंडीशन द कोच स्टैंड्स एट अ सर्टेन प्लेस विथ एट द बॉल्स, ही थ्रोज वन बॉल एट अ टाइम at each of the trainees directly. He goes on throwing the ball till each trainee has received one. यानी इस केस में रेडिएशन होगा, मीन्स रेडिएशन का गुड, दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन. सो इन दिस केस द ट्रेनी विल जस्ट थ्रो द बॉल. वह हर ट्रेनीज को अपने एक निश्चित प्लेस पर खड़ा करेगा और वह हर ट्रेनीज को बॉल फेंक कर पहुंचाएगा और यह रेडिएशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा. कैन यू एसोसिएट द एबव 3 मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉल्स विद द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट? कैन यू डिटरमाइन विच ऑफ द एबव मेथड इज सिमिलर टू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन? स्टूडेंट्स, नाउ आई होप you have understood all the 3 situation of conduction, convection and radiation. Now this is time to checkpoint 3. This will be given in the third video with practice time, in which all the question answers will be given. Till then, thank you.